Bismillah Rahman Rahim. Welcome student to the world of mathematics, class 10th. And your teacher is Hamad Hussain. Today our topic is unit number 2, that is theory of quadratic equation. Unit 2, theory of quadratic equations. Our first topic is cube roots of unity. What is meant by unity? Unity mean 1. So cube roots of unity mean how many cube roots of 1? Now we will see how to find the cube roots of 1 method. Let us suppose that x be the square root not cube root of unity. Let x be the cube root of unity. It can be written as x is equal to 1 raised to power 1 by 3. 1 raised to power 1 by 3. Taking cube on both sides, x cube is equal to 1. X cube is x cube, and when we take cube on the right hand side, cube cancel out with 1 by 3, so on the remaining is 1. When this one goes to the left hand side, it will become minus 1, so our equation will be x cube minus 1 is equal to 0. X cube minus 1 is equal to 0, and as we know that 1 cube is 1, so x cube is equal to x whole cube, and 1 can be written as 1 whole cube. Here we will use formula a cube minus b cube, that is a minus b a square plus ab plus b square. In our case, a is x and b is 1. So according to the formula, x cube minus 1 cube is equal to 0 can be written as x minus 1 into x square plus x plus 1 is equal to 0. A minus b, a square plus ab plus b square is equal to 0. In mathematics, as we know that if product of two factor is equal to 0, then either first factor here x minus 1 and the second factor x square plus x plus 1 is equal to 0. Either x minus 1 is equal to 0 or x square plus x plus 1 is equal to 0. If x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1. And x square plus x plus 1 can be solved by the quadratic formula x equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a. Replace the values of a, b and c. We will get minus 1 as it is plus minus 1 square is 1. 4 into 1 into 1 is 4. 1 minus 4 and 2 into 1 is 2. 1 minus 4 is minus 3. Minus 1 plus minus square root of minus 3 divided by 2. And as we know that square root of minus 3 is equal to square root of 3 iota, because we know that iota is equal to square root of minus 1. So cube roots of unity are x is equal to 1, x is equal to minus 1 plus under root 3 iota over 2, and x is equal to minus 1 minus under root 3 iota over 2. These are the three cube roots of unity. 1 minus 1 plus under root 3 iota over 2, and minus 1 minus under root 3 iota over 2. Now, the two complex cube roots of unity are minus 1 plus under root minus 3 over 2, which can be written as under root 3 iota over 2, and minus 1 minus square root of minus 3 over 2. If we name any one of these as omega, pronounced as ओमेगा देन अदर इज ओमेगा स्केयर सपोज करें स्टूडेंट कि अगर इनमें से हम वन को तो नाम नहीं दे सकते क्योंकि वन एक कांस्टेंट है ये जो है हमारे पास माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा ओवर टू तो अपनी आसानी के लिए अगर हम इसको कोई नाम देना चाहे तो वो नाम हम लोग क्या देंगे ओमेगा का देंगे इसका जो सिंबल होता है ये स्पेशली डब्ल्यू की फॉर्म में इसको लिखते हैं और इसको प्रोनाउंस करते हैं इन फॉर्म ऑफ ओमेगा इफ minus 1 plus under root 3 over 2 is omega, then minus 1 minus under root 3 iota over 2 will be omega square. And if minus 1 minus under root 3 over 2 is omega, then minus 1 plus under root 3 iota divided by 2 is omega. अगर
प्लस वाले को मेगा कह रहे हैं तो माइनस वाले को मेगा स्केयर कहना पड़ेगा, और अगर माइनस वाले को मेगा कह रहे हैं तो प्लस वाले को ओमेगा स्केयर कहना पड़ेगा। इसका स्पेशल सिंबल होता है, इसको लिखते हैं हम लोग डब्ल्यू की फॉर्म में। नाउ properties of cube roots of unity. Properties of cube roots of unity. First property. Complex cube roots of unity is square of each other. Means that if omega is minus 1 plus square root of minus 3 over 2, then omega square is equal to minus 1 minus square root of minus 3 over 2। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर हम एक को ओमेगा कह रहे हैं तो मुझे दूसरे को क्या कहना पड़ेगा, ओमेगा स्केयर। अगर हम प्लस वाले को ओमेगा कह रहे हैं और इसका हम लोग स्केयर ले लें तो ये वही बनेगी जो हम लोगों के पीछे फॉर्म आ रही थी। अगर इसको हम प्लस वाले को ओमेगा कह रहे हैं तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर। और अगर इसको हम लोग माइनस के साथ ओमेगा कह रहे हैं, अगर हम इसका स्केयर ले लें तो वो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, प्लस की फॉर्म। सो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्केयर ऑफ each other, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, स्केयर की फॉर्म होती हैं। Second property is very important property, that is product of three cube root of unity is 1. Product of three cube roots of unity is 1 means that 1 omega into omega square is equal to 1, that can be written as omega cube is equal to 1. Omega cube is equal to 1, which is our second property. The third property, complex cube root of unity is reciprocal of each other, means that omega is equal to 1 over omega square, or omega square is equal to 1 over omega. Omega is equal to 1 over omega square, or omega square is equal to 1 over omega. And the last property is very important property, that is sum of all cube roots of unity is 0, means that 1 plus omega square is equal to 0. Student, these are the four properties. Number one property is complex cube root of unity is square of each other, कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर दोनों एक दूसरे के स्केयर्स होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मींस दैट ओमेगा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा स्केयर, और ओमेगा स्केयर कैन बी रिटन एज 1 ओवर ओमेगा। एंड द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज sum of all cube roots of unity is 0, means that अगर हम इन तीनों को ऐड करें 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो आंसर हमारे पास आएगा 0 के इक्वल। नाउ we will move to the proof of sum of all cube roots of unity is 0। how, इसके प्रूफ की तरफ हम लोग जाते हैं। The cube roots of unity are, as we know that there are three cube roots of unity, 1 minus 1 plus square root of minus 3 over 2 minus 1 minus square root of minus 3 over 2। Here माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री ओवर टू को हम लोग क्या कह रहे हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो माइनस वाले को हमें किस चीज से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर से। हमने प्रूव करना है कि इन तीनों का सम, मतलब कि इन तीनों को हम लोगों ने ऐड करना है। 1 प्लस माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री ओवर टू प्लस minus 1 minus square root of minus 3 over 2. Taking 2 LCM, we will get 2 minus 1 plus square root of minus 3 minus 1 minus square root of minus 3 over 2. This minus 1 and this minus 1 will come minus 2, cancel out with this 2, and plus square root of minus 3 cancel with the minus square root of minus 3. Numerator is 0 and denominator is 2, and in mathematics we know that 0 by 2 is 0. So 1 plus omega square is equal to 0 is our required result. स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि हमने इन तीनों की वैल्यूज लिखी, 1 की, ओमेगा की और ओमेगा स्केयर की। तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेने के बाद कैंसलिंग हो जाएगी, और राइट हैंड साइड वाला हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह हम लोग इसके बाकी भी तीन प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 and 64। Now, first of all, we will solve it. Second part, that is cube roots of 8. Cube roots of 8. Let x be the cube root of 8. Method is same as we solve for the cube roots of unity. Here,
unity is replaced by x, unity is replaced by 8. So x can be written as x is equal to 8 raised to power 1 by 3. 8 raised to power 1 by 3. 8 raised to पावर 1 बाई 3 ये एक स्टेप नहीं आएगा आप लोगों के पास. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, और 8 रेज टू पावर 1 बाई 3 का जब क्यूब लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 8, और लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा आपके पास -8 इक्वल टू 0. ये वाला स्टेप स्टूडेंट्स आपके पास नहीं आएगा, ये मिस्टेकली आ गया है. नाउ we will factorize x cube minus 8 is equal to 0. As we know that 8 can be written as 2 cube. 8 can be written as 2 cube. Again, we will use formula a cube minus b cube. That will be x minus 2. A square plus ab plus b square. So x square plus 2x plus 4 is equal to 0. x cube minus 8 is equal to 0 पे हमने a cube minus b cube का फार्मूला अप्लाई किया, तो वो हमारे पास बन जाएगी फॉर्म x माइनस टू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सेम प्रोसीजर है. अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो उसका मतलब है फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड. अगर फर्स्ट फैक्टर 0 है विच इज x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 2. नाउ सेकंड फैक्टर, that is x square plus 2x plus 4 is equal to 0. This can be solved by the method of quadratic formula, which is x equal to minus b. Here b is 2. Here b is 2 minus b plus minus b square 2 square minus 4ac. Students यहाँ minus 2 नहीं, यहाँ सिर्फ आपके पास क्या आएगा plus 2 आता है. तो minus 2, 2 square is 4, minus 4 into 4 is 16 by 2. 4 is 4, 16 by 2. 4 minus 16 is minus 12, and minus 12 can be written as 4 multiplied by 3, and 4 cube root square root of 4 is 2. So minus 2 plus minus 2 square root of 3 iota by 2. Taking 2 common from the numerator, 2 minus 1 plus minus square root of 3 iota by 2. स्टूडेंट्स यहाँ 2 और 2 को कैंसिल आउट नहीं करना, क्योंकि ये आप देख लें हमारे पास ओमेगा की फॉर्म बन रही है, तो हमने क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएगा उसको ओमेगा की फॉर्म में लेके जाना है. तो ये प्लस माइनस के साथ आ रहे हैं, एक दफ़ा इसको लिख देंगे प्लस के साथ और एक दफ़ा हम इसको लिख देंगे माइनस के साथ. तो विच इज अवर फाइनल रिजल्ट बन जाएगा क्यूब रूट्स ऑफ 8 और x इज इक्वल टू 2 है. एक रिजल्ट आ रहा है x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं 2 ओमेगा, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर. सो 8 का जो रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास 2 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर. नो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसका विच इज फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -27. सेम प्रोसीजर है जी, लेट करते हैं x बी द क्यूब रूट ऑफ -27. x को लेट कर लेते हैं -27 के ये क्यूब रूट हैं. तो x इज इक्वल टू -27 रेज टू पावर 1 बाई 3 हो जाएगा. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे तो x क्यूब इक्वल टू -3 क्यूब, तो वो उसको हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0. अब यहाँ हमारे पास फार्मूला यूज होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो क्या होता है a प्लस b a स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर. इस केस में a हमारे पास है x और b हमारे पास आ रहा है 3, तो हो जाएगा x प्लस 3 एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. प्रोडक्ट दो का इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 अगर हुआ तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3. और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 9. माइनस b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a.
ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर होता है आप लोगों के पास 9 और 4 इंटू 9 इज 36। 9 माइनस 36 इज -27 और 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 3 और 9 का स्क्वायर रूट आता है 3 तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। स्टूडेंट्स जो एयोटा की वैल्यू है ओमेगा की वैल्यू है उसमें आता है हमारे पास -1 फर्स्ट टर्म आती है और यहाँ हमारे पास आ रहा है 3। तो हम इसको क्या करते हैं हमने 3 कॉमन लेना है तो 3 कॉमन के साथ साथ हम इससे ले लेते हैं माइनस भी कॉमन। तो जब हम इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पीछे बच जाएगा -1 क्योंकि इन दोनों को ओपन करें तो आंसर क्या आते हैं 3। जब इस प्लस में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस और जब माइनस में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस तो लिहाजा प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखें फॉर्म क्या बच की -3 बार आ गया और ये दोबारा हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का रिलेशन बन गया जिसको हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपके पास पार्ट था जैसे हमने फाइंड करना है क्यूब रूट्स ऑफ -27। नाउ नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले जरा आप लोग हिंट देख लें जी इसके बारे में क्वेश्चंस के हिंट क्या हैं जी। फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास -1 जो आप लोगों की असाइनमेंट भी हैं उसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। जो सेकंड है वो है हमारे पास -27 जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आएंगे आए हैं हमारे पास -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। जब 8 को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट्स आते हैं 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर और जब 64 को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट्स आते हैं 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात बताने वाली ये है कि इसके आसान सा जो सिंपल रिजल्ट्स याद रखने का तरीका ये है कि 1 का क्यूब रूट हमने देखा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ रहे थे। -1 है तो उसका क्यूब रूट आएगा -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। -27 है तो माइनस तो साथ रहेगा बट 27 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 3 तो एक होगा -3 क्यों क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है अगर यहाँ प्लस होता तो सिंपल क्या होता है 3 और 3 ओमेगा और 3 मेगा स्क्वायर यहाँ माइनस है तो -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। जिसको याद रखने का तरीका अगर 8 है तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 तो पॉजिटिव है तो लिहाजा क्या आ जाएगा 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। ये एमसीक्यूज के लिए भी हिंट आपको याद होना चाहिए। और लास्ट अगर 64 है तो 64 का क्यूब रूट होता है 4 तो रिजल्ट्स आएंगे इसके 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर आ जाए हमारे पास 125 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 5 तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 5 ओमेगा एंड 5 ओमेगा स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एवलेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7। हमें पता है जी इसका हमने फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन का हम लोग इसमें इसी मेथड से यूज करेंगे। 1 प्लस ओमेगा इस तरफ रहने दें क्योंकि यहाँ हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस ओमेगा स्क्वायर की तो 1 प्लस ओमेगा इधर ही रहेगा तो प्लस ओमेगा स्क्वायर जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब है माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 प्लस ओमेगा। तो जब रिप्लेसमेंट करेंगे 1 माइनस ओमेगा एज इट इज और माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया 1 प्लस ओमेगा। तो ब्रैकेट ओपन होंगी तो प्लस एंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ओमेगा और ये प्लस ओमेगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ये 1 और 1 ऐड होकर हमारे पास आ गया 2 2 रेज टू पावर हो गया 7 और 2 रेज टू पावर 7 होता है आप लोगों के पास 128। ये था जी स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट। अब इसका देखते हैं जी हम लोग सेकेंड पार्ट के बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे जो है हमारे पास 4 9 + 4 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर क्यूब 4 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब
सेम फार्मूला 1 स्केयर इज इक्वल टू 0। 1 की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्केयर। यहाँ हमारे पास माइनस ओमेगा स्केयर था, जबकि यहाँ हमारे पास ओमेगा स्केयर वाली टर्म के साथ क्या आ रहा है, प्लस। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस बाहर कॉमन भी ले लेते हैं, तो ओमेगा स्केयर के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि जब इन दोनों को ओपन करेंगे तो वो +4 ही बनता है। मगर हमारे पास माइनस ओमेगा स्केयर का रिजल्ट है, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, -4 बार आ गया और बाकी हमारे पास बच गया माइनस ओमेगा स्केयर। अब माइनस ओमेगा स्केयर की जगह वैल्यू रिप्लेस करते हैं, जो है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा रिप्लेसमेंट करने के बाद ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन की तो 9 + 4 ओमेगा एज इट इज आ गया। -4 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। और जब -4 को हम लोग प्लस ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4 ओमेगा। -4 ओमेगा और +4 ओमेगा दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 9 - 4 आंसर आ गया आप लोगों के पास। 5 पावर क्यूब थी स्टार्ट में भी, तो 5 क्यूब और 5 क्यूब आ गया आप लोगों के पास 125। 5 क्यूब आ गया आप लोगों के पास 125। तो ये आपके पास दो पार्ट थे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो इनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो मैंने एक मेथड फॉलो किया जो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में वही यूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज पार्ट नंबर 4। 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, 3 - 3 ओमेगा +3 ओमेगा स्क्वायर। इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। दोबारा हमें वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 + ओमेगा की वैल्यू आ गई आप लोगों के पास -ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ तो हमारे पास -ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, 2 को पॉजिटिव के साथ रख देंगे और माइनस को ले जाएंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ। यहाँ हमारे पास प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रहा था, तो सेम प्रोसीजर जो हम लास्ट पार्ट में भी किया है, 3 - 3 ओमेगा एज इट इज लिखेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमें पता है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 + ओमेगा, तो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इस फैक्टर पे भी और सेकंड फैक्टर। और जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो बन जाएगा 2 + 2 ओमेगा +2 × 1 is 2 and 2 × omega is 2 omega. Our second factor will be 3 - 3 omega, -3 × 1 is -3, and -3 into plus omega is -3 omega. Here 2 + 2 is 4 and 2 omega plus 2 omega is 4 omega. And this 3 cancel out with this 3 because positive 3 cancel with negative 3, and -3 omega and -3 omega is -6 omega. 4 + 4 omega, we can take 4 common, then the remaining will be 4 into 1 + omega into -6 omega. From above, we can see that 1 + omega is equal to minus omega square. 1 + omega is equal to minus omega square. So replace the value of 1 + omega. So 4 into minus omega square. 1 + omega is equal to minus omega square. So replace the value 4 into minus omega square into -6 omega. Minus and minus is plus. 4 into 6 is 24, and omega square into omega is omega cube, because if bases are same then power will be add. As we know from the second property, product of cube roots of unity is 1, means that omega cube is equal to 1. Replace the value of omega cube, 24 omega cube, 24 omega cube is equal to 1. So 24 into 1 is 24, which is our final answer. Which is our final answer. This is the last part of today lecture. Question number 2, exercise 2.2. Thank you, students. If you have any questions, you can ask me anytime.